তেখেতে কৈছে যে লুকিষ্ট পলিচি ডাইৰেক্টলি নামটো লোৱা নাই তেখেতে কৈছে যে ৰাহুলে এটা কথা কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টক এছিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কানেক্ট কৰে তেতিয়া এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট এভিনিউজ জেনেৰেট হ'ব অসমৰ যিখিনি জবলেছ আছে নট ইউথ চ' এজ এক্সপেক্টেড লাইনছ বাট মই ভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্পীচ ৱাজ লেকলাচাৰ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ স্পীচ ৱাজ স্লাইটলি মোৰ ৰিলেক্স দেখা গৈছে আমি চমুকৈ পাতিম ৰমেন ডেকাৰ কাষত নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰচাৰ মাইনী মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চমুকৈ পাতিম তাৰপিছত আমি নিশ্চয় তেওঁৰ ভাষণ আৰম্ভ হ'ব মঙলদৈলৈ যাম হয় নন্দন নৰেন্দ্ৰ মোদীক আজি কিছু পৰিমাণে খুব ভাগৰুৱা যেন দেখা গৈছিল তেওঁৰ ভাষণত তেওঁৰ আগৰ ভাষণবোৰত যিমান উদ্দীপ্ত আছিল তাতকৈ আজি কিছু পৰিমাণে ভাগৰুৱা যেন লাগিছে আৰু কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত দুইজনৰ ভাষণতে নতুন কথা একো নাই এজনে শংকৰদেৱৰে আৰম্ভ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰনাৰায়ণে আৰম্ভ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন কথাৰ ভিতৰত কোচ ৰাজবংশী জনজাতিকৰণৰ কথাটো কৈছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণত বেছি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটো তেখেতে বেছিকৈ কৈছে আৰু কিন্তু এতিয়া ৰাজনৈতিক দলবিলাকে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটো তেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে এটা মানে শ্লোগান নিচিনাকৈ তথাপিও শুনি ভাল লাগিছে যে তেওঁ যিবিলাক ভাষণৰ বাক্যবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে যে ভাৰতীয় মহিলাক শক্তিশালী কৰিব নালাগে ভাৰতীয় মহিলা ইতিমধ্যে শক্তিশালী তেওঁলোকক ইজ্জত সন্মান দিব লাগে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁৰ ভাষণ আৰু তুলনামূলকভাৱে নন্দন ৰাহুল গান্ধীক আমি ইমান দিনে যিমানবোৰ ভাষণ দেখিছিলোঁ তুলনামূলক আজি তেখেতক অলপ উদ্দীপ্ত আৰু তেখেতৰ ভাষণ মানে কিছু পৰিমাণে পৰিপক্ক যেন মোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া মঙলদৈৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ প্ৰাৰ্থী ৰমেন ডেকা বৰ্তমানৰ সাংসদ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈৰ পুনিয়াৰ পৰা সভা খন্তেক সময়ৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব ননী গোপাল মহন্তত ৰাহুল গান্ধী বনাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাষণ নন্দন আমি যদি ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বৰ তেওঁৰ যিটো ভূমিকা আৰু তেওঁৰ যিটো পাব্লিক যিটো পশ্চাৰ মানে ৰাজহুৱা তেওঁৰ যিটো উপস্থাপন সেইটো মই তিনি ভাগত ভাগ কৰিব বিচাৰোঁ প্ৰথম ফেজটো হ'ল একেবাৰে তেওঁৰ ডচাইল ফেজ তেওঁ এইটো ফেজত একেবাৰে কম কথা কৈছিলে তেওঁ বেছি সক্ৰিয় নাছিলে তেওঁ মাত্ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত তিনিবাৰ কথা কৈছিল সেইটো হ'ল তেওঁ এটা ফেজ দ্বিতীয় ফেজটো হ'ল তেওঁ এজন ৰিলাক্টেণ্ট পলিটিচিয়ান তেওঁ এটা সময়ত কৈছিল যে ক্ষমতা বৰবিহ নোৱাৰতে তেওঁ যেন এই ক্ষমতাত আছে তৃতীয় পৰ্যায়ত তেওঁ অলপ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে অধিষ্ঠিত হয় তাৰ পাছৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ত যেতিয়া ইলেকশ্যন পালেহি এই ইলেকশ্যন সময়তো আমি আকৌ দুজন ৰাহুল গান্ধীক দেখিবলৈ পাওঁ এজন ৰাহুল গান্ধী প্ৰথম পৰ্যায়ত একেবাৰে ডচাইল টাইপৰ আছিলে খুব বিশেষ আক্ৰমণ কৰা নাছিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰা নাছিলে মোদীক টাৰ্গেট হিচাপে লোৱা নাছিলে তেওঁ জেনেৰেলি ভিজন এইখিনি কথাই তেওঁ বেছিকৈ উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু যোৱা প্ৰায় 10 দিন মানৰ পৰা আমি ৰাহুল গান্ধীক 10-15 দিন মান পৰা ৰাহুল গান্ধীক এক নৱৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো হৈছে তেওঁ যথেষ্ট এগ্ৰেছিভ হৈছে তেওঁ যথেষ্ট চৰমপন্থাৰ তেওঁ সহায় লৈছে আৰু লৈ পেলাই আজি যদি আমি তেওঁৰ স্পীচটো চাওঁ এই স্পীচটোত মই ভাবোঁ সৰহখিনি সময় তেওঁ মোদীক আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু আমি যদি কণ্টেণ্টটো যদি চাওঁ হয় তেখেতে অসমক লৈ পেলাই কিছুমান কথা কৈছে যেনে অসমৰ কৰিডৰৰ কথা কৈছে কিন্তু এই কৰিডৰৰ বাহিৰে অসমৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা বানপানী সমস্যাৰ কথা তেখেতে উল্লেখ নকৰিলে ৰোজগাৰৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা নকলে 6 জনগোষ্ঠীৰ যিটো তেওঁলোকক ST দিয়াৰ প্ৰদান কৰাৰ যিটো দাবী সেই দাবী সম্পৰ্কে তেখেতে উল্লেখ নকৰিলে গতিকে এনেকুৱা অজস্ৰ কথা আছে যিবোৰ মই ভাবোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ স্পীচত এইখিনি কথা অহা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিহুৰ বতৰত বিহুক উপলক্ষ কৰি ঢোলত চাপৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি শব্দ বা তেওঁৰ সেই যদি দৃশ্যাংশৰ লগতে আমি যদি চাব পাৰোঁ মঙলদৈৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পুনিয়াৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মঙলদৈৰ পুনিয়াত এক বৃহৎ জনসভা ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পালে বঙাইগাঁৱৰ কাকজানাত কিদৰে বৃহৎ জনসভাক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিভিন্ন माता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर्वानंद जी, हमारे चुनाव के प्रभारी श्रीमान सुधांशु जी और आपके जागरूक सक्रिय सांसद और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री रमन डेका जी, मंच पर विराजमान
सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, आसाम के मेरे सभी भाइयों बहनों को रंगाली बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आज मुझे भी रंगाली बिहू के इस माहौल में एक विजय डंका बजाने का सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, ऐसी चमचमाती धूप में ये जो विशाल जनसागर मैं देख रहा हूं, वहां उस रोड के उस पार भी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। गजब किया है भाई आप लोगों ने। मैं 2009 में भी आया था। कहा देखा जी, 2009 में भी आया था ना। तब एक कोने में छोटी सभा हुई थी। आज ऐसा लगता है किसी राज्य की बड़े से बड़ी रैली से भी एक पार्लियामेंट सीट की इतनी बड़ी रैली। भाइयों बहनों, ये दिखाता है हवा का रुख क्या है। मैंने कहा था जब चुनाव घोषित हुए तब हमने कहा था कि मतदान आते आते ये जो आंधी है वो सुनामी में पलट जाएगी। और आज मैं देख रहा हूं कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक, जहां जहां जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैंने चुनाव का ऐसा नजारा कभी पहले देखा नहीं। ये चुनाव ऐसा है जो राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव ऐसा है जो उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव ऐसा है जो देश की जनता लड़ रही है। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा है कि जहां चुनाव घोषणा होते ही उसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं इस सब मैदान में एक साथ 3 सभाएं चल रही है। एक ये जो मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे जो वहां रोड पर बालकनी पर खड़े हैं, और तीसरे जो बॉक्स में बैठे हैं। आपको सुनाई देता है भाई? कोई गिर तो नहीं जाओगे ना? हाँ, ये बिहू का मौसम है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या कमाल है भाई। मेरे आसाम के भाइयों बहनों, आपने जो धूप में तपस्या की है ना, ये तपस्या मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। और आप
आपने मुझे जो प्रेम दिया है वो प्यार मैं विकास करके 1.25 गुना करके लौटाऊंगा आपको। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं कि यहां की सरकार करती क्या है। दिल्ली में मां बेटे की सरकार कुछ करती नहीं है, इधर बाप बेटे की सरकार कुछ करती नहीं है। भाइयों बहनों, ये 15 साल से बैठे हैं, 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं। मुझे जरा बताइए, जरा पूरी ताकत से जवाब देना, 10-10 साल से भी ज्यादा समय हो गया, आपका भला हुआ है? ऐसे नहीं, कान फट जाए ऐसे बोलो। आपका भला हुआ है, नौजवानों का भला हुआ है, महिलाओं का भला हुआ है, किसानों का भला हुआ है, गांव का भला हुआ है। ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? आपको बर्बाद किसने किया? आपको दुखी किसने किया? आपका भविष्य किसने बर्बाद किया? भाइयों बहनों, ये लोग गुनहगार हैं, गुनहगार हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने बच्चे को कोई अच्छे मास्टर जी के पास हर महीना 1000 रुपया खर्च के पढ़ने के लिए रखें और बच्चा नापास हो जाए, तो आप मास्टर जी पे गुस्सा करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? आप बीमार हो गए हो, डॉक्टर को 10,000 रुपया फी दो, लेकिन अगर बीमारी नहीं गई तो डॉक्टर पे गुस्सा करोगे नहीं करोगे? फिर से उस डॉक्टर के पास जाओगे? इन्होंने आपकी जिंदगी बिगाड़ दी, अब तो छोड़ो इनको, बर्बाद कर दिया आपको। भाइयों बहनों, आपके मुख्यमंत्री सुबह शाम नमो 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 करते रहते हैं। अच्छा होता वो आसाम के नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए कोई योजना बनाते, कोई काम करते, कोई उद्योग लाते। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं कि आसाम में ये कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान राहुल जी सारे देश में जाकर के कहते हैं कि हमने नरेगा दिया, लोगों को रोजगार दिया। सब जगह पे वो डोल पीटते रहते हैं। मैं जरा राहुल जी आपके झूठ का नकाब खोलना चाहता हूं। आप झूठ बोलने में पीएचडी की है। पता नहीं ये आपका भाषण लिखता कौन है, जरा वेरीफाई तो करो, आप क्या पढ़ते हो। भाइयों बहनों, ये नरेगा के अंदर देश में 5 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अर्जी दाखिल की थी। 5 करोड़ लोगों ने, और कितनों को मिला आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। 5 करोड़ लोग मिट्टी उठाने के लिए कतार में खड़े थे, गड्ढे खोदने के लिए तैयार थे, पसीना बहाने के तैयार थे, लेकिन आपने रोजगार सिर्फ दिया
आधे करोड़ लोगों को, आधे करोड़, डूब मरो कांग्रेस के मित्रों, ये जनता की आंख में धूल झोंकना बंद करो। भाइयों बहनों, आपके आसाम में क्या हुआ? और आज राहुल जी यहां है, मुख्यमंत्री जी भी साथ में होंगे, वे उनकी तारीफ करेंगे, वो उनकी तारीफ करेंगे। अहो रूपम अहो ध्वनि, यही चलेगा? जरा जवाब देना। आपके असम में 12,30,000 लोगों ने रोज, 1 लाख कुटुंब ने, 1 लाख परिवार ने आसाम में नरेगा में काम मांगा था और मजदूरी करने के लिए मांगा था, मिट्टी उठाने के लिए मांगा था। और आपकी सरकार ने सिर्फ 12,000 लोगों को रोजगार दिया, 12,000 को। भाइयों बहनों, आपने कागज पे योजनाएं चलाई और ये योजनाएं आपके नीचे जो लूट कराने वाली सेना है उसको लूट करने के लिए खुला मैदान दे दिया है और आपने बर्बाद किया है। भाइयों बहनों, ये राहुल जी इसके पहले भी आसाम आए थे और जब आसाम आए थे तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बातें कही थी। मैं जरा उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को महिलाओं की सुरक्षा में कोई विश्वास है? मैडम सोनिया जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपके नाक के नीचे दिल्ली में मेरी नॉर्थ ईस्ट की बेटियों पे बलात्कार होते हैं। क्या किया आपने? जवाब दो। आसाम में आकर के भाषण सुना रहे हो, आपके नाक के नीचे दिल्ली में आप मां बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। भाइयों बहनों, मैं आसाम के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, बाप बेटे की सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या आसाम में महिलाएं सुरक्षित है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ जो गुनाह होते हैं, क्राइम होते हैं, उसमें आसाम का नंबर पहले 3 में आता है, पहले 3 में आता है। आसाम, जहां मां बहनों का सम्मान, ये यहां के सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन उसी आसाम में आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब हालत माताओं बहनों की कहीं हो, वो आसाम में है। और राहुल जी, आपकी सरकार, दिल्ली की मां बेटी की सरकार देश को कैसे गुमराह कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले साल दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ, एक निर्दोष बच्ची पर राक्षसों ने बलात्कार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली के नौजवान गुस्से में आए, जनवरी की ठंड में वो रात रात पर रोड पर सोते रहते थे। दिल्ली सरकार उन पर पानी के फवारे छोड़ती थी ठंड में, और वो बच्चे निर्भया के लिए न्याय मांगते थे। पूरा हिंदुस्तान गुस्से में था। क्या हो रहा है दिल्ली में? माताओं बहनों की इज्जत क्यों लूटी जा रही है? आक्रोश था।
अब तब जाकर के देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए मां बेटे की सरकार ने क्या किया? अपने बजट में 1000 करोड़ रुपया निर्भया फंड के लिए लगाया। सारे देश में अखबारों में बहुत ही बढ़िया बढ़िया खबर छपी, टीवी पर छपी कि मां बेटे की सरकार ने बेटियों के सम्मान और रक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपयों का निर्भया बजट बनाया। भाइयों बहनों, 1 साल हो गया, संवेदनाहीन ये दिल्ली की सरकार ने, मां बेटे की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्भया फंड में से मां बेटियों के लिए 1000 करोड़ निर्भया फंड में से एक नया पैसा खर्च नहीं किया। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। ऐसे विषय में तो कम से कम संवेदना दिखानी चाहिए थी। और ये ऐसे मोटी चमड़ी के लोग हैं, पिछले वाले 1000 करोड़ तो खर्चा नहीं किया। इस बार जब इंटरिम बजट रखा तो चुनाव में लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए फिर से 1000 करोड़ रुपया घोषित कर दिया। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस वालों को पता है वो लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं तो भी लोगों को धूल का दिखाई देता है। अब इसलिए कांग्रेस ने आंख में धूल झोंकना बंद किया है और पार्लियामेंट में उन्होंने आंख में मिर्ची झोंकने का काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस के भरोसे क्या माताएं बहनों की सुरक्षा बढ़ेगी? पूरी ताकत से जवाब दो। माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई दर्दनाक बात नहीं हो सकती है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग स्वभाव से बांटो तोड़ो, भाई के भाई में दरार कर दो, यही उनकी राजनीति का खेल रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, यही उनकी राजनीति है। भाइयों बहनों, तेलंगाना में क्या किया उन्होंने? आंध्र और तेलंगाना के लोगों को एक ही भाषा बोलते थे, लड़ा दिया। सालों से असमिया और बोडो को लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहे? अपना उल्लू सीधा कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या मेरे बोडो भाइयों को और नॉन बोडो भाइयों को मिला करके, विश्वास में लेकर के उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको न्याय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबको साथ मिला करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये नहीं करते। क्यों? उनकी राजनीति तोड़ने से चलती है, जोड़ने से नहीं चलती। भाइयों बहनों, उनका काम है तोड़ो और राज करो। हमारा काम है जोड़ो और विकास करो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आजादी के इतने साल हो गए, क्या आप लोगों को रेलवे कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारे रमन देखा जी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सुनने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों, अब दिल्ली में ऐसी सरकार बनाइए ताकि आपको हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का काम कर दे। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार को बदलना जरूरी है। यहां पर
असम के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सेवा की। वो सुबह सुबह उठ करके रोज एक झूठ बोलते थे और यहां के लोगों को पता नहीं, वो रोज एक गाली मोदी को देते थे, एक गाली गुजरात को देते थे और ऐसा दावा करते थे कि जैसे उन्होंने आसाम को स्वर्ग बना दिया है। और ये कहते थे गुजरात तो निकम्मा है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, मोदी झूठ बोल रहा है, ऐसा ही कह रहे थे। और राहुल जी भी वही बोल रहे हैं। मैं यहां के एक टीवी चैनल का अभिनंदन करना चाहता हूं, न्यूज टाइम वालों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया, जांच करने के लिए टीम भेजी गुजरात में, खुद के खर्चे से भेजी और गुजरात में जाकर के जो असम के लोग गुजरात में रहते हैं उनको मिले, उनका इंटरव्यू किया, पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, बिजली आती है कि नहीं आती, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है, अस्पताल चलता है कि नहीं, सारा उन्होंने वहां से टीवी पर कैमरा में रिकॉर्ड किया। वो आए थे, असम के मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको खोजने के लिए, वो ढूंढने आए थे कोयला, मिल गया हीरा। फिर उन्होंने ईमानदारी दिखाई, वो असम मुख्यमंत्री से डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत से दिखाया कि आसाम में मुख्यमंत्री के इलाके में पानी का क्या हाल है और गुजरात में जो असामिया गया है उसको पानी कितना मिलता है, ये सारा उन्होंने दिखाया और पूरी आसाम की जनता ने देखा है। देखा है ना भाइयों, देखा है ना। और वो मैं नहीं बोल रहा था, आपके आसाम के भाई जो मेरे गुजरात में रहते हैं वो बोल रहे थे। आप मुझे बताइए, आपको ऐसा आसाम बनाना है कि नहीं बनाना है? आपको आसाम का भला करना है कि नहीं करना है? मेरे पास रास्ता है, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा सहयोग दीजिए। आसाम के भविष्य के लिए ये मां बेटे को और बाप बेटे को विदाई करो भैया। ये बोझ बन गए, आपका भला नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, जय जवान जय किसान। और ये मां बेटे की सरकार क्या कहती है? देखिए, पाकिस्तान आकर के हमारे जवानों के सर काट ले, आतंकवादी हमारे जवानों को मार दे, बम ब्लास्ट हो, ये जवानों के बच्चों को भी मार दे। आप मुझे बताइए, ये मां बेटे के राज में जय जवान है क्या? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय किसान। इनके राज में किसान का भला हुआ है क्या? मुझे बताइए, किसान का भला हुआ है क्या? किसी का भला हुआ है क्या? भाइयों बहनों, जितने हमारे जवान युद्ध में मरे हैं उससे ज्यादा किसान आत्महत्या करके मरे हैं इनके राज में। मां बेटे के राज में जवान युद्ध में मरे, उससे ज्यादा किसान आत्महत्या करके मरे हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। मां बेटे की सरकार कह रही है, मर जवान मर किसान। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जितना जल्दी इनसे मुक्ति पाओगे। महात्मा गांधी आसाम की महिलाओं का बड़ा आदर करते थे और महात्मा गांधी आसाम की महिलाओं में जो वीविंग की क्वालिटी थी, वीवर के नाते उनकी उंगलियों में जो स्किल था, तो महात्मा गांधी बड़े प्रसन्न थे। वो कहते थे, आसाम की हर महिला उसकी उंगलियों पर हुनर विराजता है, स्किल होते उनकी उंगलियों में, और वे धागे में से एक नई दुनिया खड़ी कर सकते हैं। एक एक महिला आसाम की वीवर है।
लेकिन भाइयों बहनों, आज आपको चाहिए उतना गोमचा मिलता है क्या? महिलाएं जो गोमचा उपयोग करती मिलता है क्या? क्या हाल कर दिया? हमारी माताओं बहनों के पास इतनी बड़ी ताकत है उंगलियों में, आपने उनकी उंगलियां ही काट ली। भाइयों बहनों, ऐसा अत्याचारी जुल्म कभी नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज आया हूं, आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। सिर्फ मैं ये सीट जिताने के लिए नहीं आया हूं, ये तो आपने जिता दी है। मैं तो मेरे आसाम के भाइयों को कहने आया हूं, अब आसाम के सारे कमल दिल्ली आने चाहिए। दिल्ली में अब आसाम का कमल खिलना चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की। মঙলদৈৰ পুনিয়াৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদ্দাপ্ত ভাষণ পুনৰবাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। এইবাৰ নগাঁৱলৈ যাব নৰেন্দ্ৰ মোদী। নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছত তেওঁৰ তৃতীয়খন জনসভাক উদ্দেশ্যি সম্বোধন কৰিব। আৰু আমি ইতিমধ্যে দৃশ্যত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ নগাঁৱৰ বাইপাছৰ এই জনসভালৈ আহি আছে। আৰু নগাঁৱৰ যি বৰঘাটত এই অনুষ্ঠিত হ'ব সভা, এই সভাৰ বাবে বাছত যথেষ্ট মানুহ আহি থকা আমি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। সেই দৃশ্য যদি আমি এবাৰ টেলিভিশ্যনলৈ আনিব পাৰোঁ। আৰু ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই ননী গোপাল মহন্ত, আপোনাৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়খন সভা আৰু এখন তৃতীয়খন সভা য'ত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰঘাট, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। নন্দন, আমি যদি তেখেতৰ গোটেই ভাষণটো পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, প্ৰথম কথা যিটোৱে মোক আটাইতকৈ আকৰ্ষণ কৰে বা আকৰ্ষিত কৰে সেইটোৱে হৈছে তেখেতৰ যিটো মানে এটা ইম'চনেল, এটা আৱেগপূৰ্ণ যিটো তেখেতৰ ভাষণ, এই ভাষণটোৱে ৰাইজক সহজতে আকৃষ্ট কৰে। আমাৰ ৱাজবীৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছিলে যে কিন্তু বক্তব্যৰ ফালৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্যত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণগত কথা থাকিলেও কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ কমিউনিকেশ্যন যিটো সংযোগ ব্যৱস্থা, এই সংযোগটো ইমান ফলপ্ৰসূ নহয় মোদীৰ যিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হয়। কাৰণ মোদী যদি আপুনি ষ্টাইলটো মন কৰে, মোদীয়ে প্ৰত্যেক তেওঁৰ ভাষণৰ প্ৰায় মিনিটে মিনিটে জনসাধাৰণৰ সম্বোধি জনসাধাৰণক লগত লৈ তেওঁ ভাষণটো দিয়ে। অসমত কিমান উন্নতি হৈছে তেওঁ ৰাইজৰ পৰা সুধিছে, ৰোজগাৰ কিমানে পাইছে তেওঁ সুধিছে, মহিলাৰ কথা তেওঁ কৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মোদী আজি যিটো সভাত ক'লে এইটো মহিলা। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে অসমত যোৱা 7-8 বছৰমানত মহিলাৰ লগত সংঘটিত যিখিনি অপৰাধজনিত ঘটনা অত্যাধিকভাৱে বাঢ়ি আহিবলৈ লৈছে। গতিকে আৰু ফলশ্ৰুতিত অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন অতি মহিলাৰ অপৰাধ সংঘটিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। গতিকে এইখিনি কথা কৈছে তেখেতে। লগতে আমাৰ আজি বিভিন্ন তেওঁ কোৱাৰ লগতে বড়ো নন বড়ো ডিভাইডৰ কথা কৈছে। আই থিংক এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কাৰণ বড়ো আৰু অবড়ো সকলৰ মাজত যিখিনি ডিভাইড, এই ডিভাইডখিনি যাতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংঘৰ্ষমূলক অৱস্থালৈ যাতে নাযায় তাৰ কাৰণে তেওঁ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেনৰ কথা কৈছে। আৰু এটা কথা কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী বা কংগ্ৰেছ দলে যি ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ কথা কয়, এনৰেগাৰ কথা কয়, কিন্তু এনৰেগাত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে 5 কোটি মানুহে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদিও চাকৰিৰ কাৰণে বা জবছ যিটো 100 ডেজ জবছৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলে, কিন্তু মূলতঃ তেওঁলোকে 1.5 কোটি মানুহেহে এই গোটেই জবখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে তেওঁ এটা কথা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো তথ্য ৰাইজৰ আগত দি আছে যে ৰোজগাৰ দিছে, এমপ্লয়মেণ্ট দিছে, এইটো এটা ভুল তথ্য বুলি কৈছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা মোদীয়ে যিটো কথা কৈছে নন্দন, সেই কথাটো হৈছে কি, এই যিটো মা বেটি চৰকাৰ যিটো তেওঁ মানে এটা আজি এনেকৈ আমি ফেচবুকত যদি চাওঁ দেখোঁ এই যিটো মা বেটিকা চৰকাৰ, মা বেহেন আৰু বেটাকা যিটো চৰকাৰৰ যিটো সংজ্ঞা, এইটো সৰ্বত্ৰ আজি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোৱাটছআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দিশত আলোচিত হৈছে। আৰু তেওঁ আজি নতুন কথা এটা সংযোজন কৰিলে। সেই সংযোজিত কথাটো হৈছে অসমত তেখেতে ক'লে বাপ বেটাকা চৰকাৰ। গতিকে মই নাভাবোঁ যে অসমত ইমান পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে। কিন্তু এইটো কথা সত্য যে সিদিনাখন এটা কাৰ্টুনত চালোঁ নন্দন, ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে মা কা প্যাৰ, তাৰপিছত তেওঁ কৈছে বেহেন কা প্যাৰ, বাট ইছবাৰ মোদী কা চৰকাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টুন লৈ পেলাই চলি আছে। গতিকে এই মা বেটি বেহেন এই কথাখিনি লৈ পেলাই তেওঁ অতি আমোদজনকভাৱে ৰাইজৰ আগত কৈছে। কিন্তু মই ভাবোঁ এইবিলাকে জনসাধাৰণৰ ওচৰত, দৰ্শকৰ ওচৰত যথেষ্ট ৰেখাপাত কৰি গৈছে। কিন্তু আদাৰৱাইজ
তেওঁৰ কিন্তু ভিজনৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মোদীৰ ভাষণত কিন্তু মই বিচৰাৰ ধৰণেৰে যিখিনি কথা ক'ব লাগিছিল তেওঁ উত্থাপিত কৰিব পৰা নাই বুলি মই ভাবো অৱশ্যে এটা কথা ঠিক নন্দন যে কেইবাখনো নিৰ্বাচন সভাত তেওঁ ক'ব লাগিব প্ৰত্যেকখন সভাত বেলেগ বেলেগ কথা ক'ব লাগিব গতিকে সকলোতে হয়তো এনে ধৰণৰ একে গুণগত যিটো অৱস্থান তেওঁ হয়তো প্ৰদৰ্শন নকৰিব পাৰে আমি দীঘলীয়াকৈ পাতিম এটা বিৰতি ল'ম বিৰতি যাবৰ খুব চমুকৈ যদি মাইনী মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ খুব চমুকৈ এটা বিৰতি ল'ম হয় মোদী বৰপেটাৰ পৰা মঙললৈ যোৱাৰ পিছত হয়তো বৰপেটাত তেওঁক যিমান ভাগৰুৱা দেখিছিলোঁ তাৰপিছত আছাম চায়ে হওক বা মোদী চায়ে হওক একাপ হয়তো খাই ল'লে গতিকে তেওঁ তাৰপিছত আৰু তেওঁ উদ্দীপিত যেন লাগিছে আৰু ভাষণত মই এতিয়াও কওঁ যে ভাষণত যিখিনি তেওঁ চবতে কৈ আছে মই ছুপাৰ হিট চিনেমা এখন যেনেকৈ ৰিলিজ হ'লে একেখন চিনেমা কিন্তু চিনেমা হিট হোৱাৰ কাৰণে লাভাৰ্ছবিলাকে চায়ে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কথাখিনিৰ একো বিশেষ মানে নতুনত্ব নাই তেওঁ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা আগৰখন সভাত নকৈছিল এইখনত কৈছে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেনৰ কথা কৈছে তেওঁ অসমীয়া শিপিনীৰ কথা ক'লে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতৰ শালখন বচাই ৰাখিবলৈ নিশ্চয় তেওঁ জানে আমিও জানো যে তাঁতশালখন বচাই ৰখা মানে ক্ষুদ্ৰ শিল্পক বচাই ৰাখিবলৈ বৃহৎ শিল্পৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব আৰু যিটো তেওঁ যিটো মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ পক্ষে তেওঁ কথা কৈছে তাৰ সেই পৰিৱেশত ক্ষুদ্ৰ মানে অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালখন বা কমি যোৱা বা নিচিন্ন হৈ যোৱাটো আচলতে বিশেষ তাৎপৰ্য নহয় এইটো সাধাৰণ কথা বুলিয়ে মই ভাবোঁ না মোদীয়ে যিখিনি কথা কৈছে দৰ্শকেও দেখিছে ইতিমধ্যে ইয়াতো আলোচনা হৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত বিজেপিয়ে যি 4টা কথা নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত কৈছে সেইটো মোদীয়ে আকৌ এবাৰ টাচ নকৰিলে তেওঁ চুই নগ'ল এটা হৈছে তেখেত বিজেপিৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত কৈছিলে যে স্মলাৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন থ্ৰু স্মলাৰ ষ্টেটছ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতে কিন্তু সেইটোত একো এটা টাচ নকৰিলে তাৰমানে তেখেতে যদি বড়োলেণ্ড ছাপোৰ্ট কৰিছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে কমতাপুৰ ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে ডিমাচা কাৰ্বি ইস্যুটো আছে গাৰোলেণ্ড আছে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যু আছে সেইটোৰ পৰা কিন্তু তেওঁ কমপ্লিটলি টাচ কৰা নাই আৰু তেওঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোতে কৈছে ডিল উইথ ইনচাৰ্জেঞ্চি উইথ এ ফাৰ্ম হেণ্ড কঠোৰ পদক্ষেপ বিজেপিয়ে ল'ব যদি চৰকাৰ আহে ইনচাৰ্জেঞ্চি ডিল কৰিবৰ কাৰণে সেইটো তেওঁ একদম কোনো টাচ কৰা নাই চ' তেওঁ কোনো ক্লেৰিটি নাই এই দুটা ইছ্যুৰ ওপৰত আৰু তেওঁ যিখিনি বাকী কথা কৈছে দিছ এক্সপেক্টেড লাইনছ ফুল অফ ৰেটৰিক্স এণ্ড মই ভাবোঁ যে কণ্টেণ্ট ইজ not as not high on content but high on rhetorics. এটা বিৰতি লৈছোঁ